Hello everyone, how are you doing? So remember a few days back we learned about a leader who was very kind and helped a lot of poor people whose name was Mother Teresa. That's right. We learned the story of Mother Teresa. We understood what were the values of Mother Teresa. Then we also spoke about why was Mother Teresa a leader, how could we be a leader, and all those things. So now we're going to learn about a second leader whose name is Rosa Parks. The name of this leader is Rosa Parks. We're going to learn about Rosa Parks through a story. So we're going to read a story about Rosa Parks, and after we read the story, we will discuss and share different things about how she is also a leader and what can we learn from Rosa Parks. So we're now going to start reading the story of Rosa Parks. Yeah. So the name of this book is I Am Rosa Parks, and the writer is Brad Meltzer. So the name of the storybook is I Am Rosa Parks, written by Brad Meltzer. All right, moving on. I am Rosa Parks. So you see this girl here sitting on a chair. She's saying, hi, I am Rosa Parks. That means the name is Rosa Parks. We see this symbol here. It says bus stop, which means that Rosa is waiting at a bus stop and she's sitting in a chair, probably waiting for her bus. Moving on. We're going to read this side of the left side of the video. Growing up, I was small for my age. जब मैं बहुत छोटी थी, मैं अपने एज के लिए बहुत छोटी थी साइज में. I was sick a lot too. She used to fall sick a lot. वो बहुत बीमार पड़ती रहती थी जब वो बहुत छोटी थी. Since we didn't have money for doctor. So Rosa was very poor. Rosa's family was very poor, and they did not have money to go visit the doctor. इसीलिए वो बहुत बीमार पड़ती रहती थी. But that didn't mean I was weak. Just because वो बीमार पड़ती थी, does it mean that वो weak है? Does that mean that वो कमजोर है? That's what she's saying, right? That शायद मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ती थी बचपन में, but that does not mean कि मैं कमजोर हूँ. So we see this picture. Rosa is standing here एक height के scale में, and she's saying, I am not that short. मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ. And Rosa's younger brother is here, and he's laughing at her and saying, looks like you are. लगता है कि तुम तो बहुत छोटी हो. So he's making fun of Rosa because of her height and the way she was looking. क्योंकि अपने एज के हिसाब से उसकी हाइट बहुत और उसकी साइज बहुत छोटी थी. All right, we're moving to this side of the page. When I was 11, जब मैं 11 साल की हुई, when I was 11 years old, as I was walking home from school, so she was walking to home from school, school से वापस घर जा रही थी, a boy on roller skates came zipping by and shoved me. जब वो walk कर रही थी from her school to home, एक लड़का रोलर स्केट्स पहन के उसको पीछे से आके धक्का मार दिया. He thought I'd be an easy target. उसको लगा कि अरे रोजा तो बहुत इजी टारगेट है, इसको बहुत आसानी से परेशान कर सकते हैं, so let's go and trouble her. So he wanted to trouble Rosa, इसलिए उसने जाके रोजा को धक्का दे दिया पीछे से. To his surprise, I turned around and pushed him back. What did Rosa do when the boy came and hit her? She turned back and pushed him back. And the boy was surprised क्योंकि उसको लगा रोजा तो बहुत weak है, Rosa is very weak, she will not do anything. पर रोजा पीछे मुड़ी और उसने जोर से धक्का मार दिया. I knew fighting was wrong. We all know that fighting is wrong, right? We don't use our hands and legs to others. We keep them to ourselves. And Rosa also knew it, but she anyway did it. But I didn't want him picking on me again. Pick on me मतलब किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना.
सो रोजा नहीं चाहती थी कि दैट बॉय विल पिक ऑन हर अगेन, वो उसको दोबारा छेड़े, एंड दैट्स व्हाई उसने पीछे मुड़ा और उसको जवाब देने के लिए उसने धक्का मार दिया. फ्रेंड्स, डू यू थिंक वी शुड हिट समवन एल्स उनको सबक सिखाने के लिए? आई थिंक the alternative that we could do in a situation like this is verbally. हम मुंह से भी जवाब दे सकते हैं instead of using our hands and legs, right? So, but रोजा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसको सारे बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, and that's why out of irritation, out of anger, she just pushed him. But I'm saying that it's not good to use our hands and legs, right? We can just use our words to make someone understand that, hey, it's not cool, I don't feel right. All right, moving on. His mother saw what happened. वो लड़का जिसने रोजा को धक्का दिया था, his mother saw everything that happened. उसकी मम्मी ने देखा. She was mad that I had pushed him. उसकी मम्मी उस लड़के पे नहीं बट रोजा पे गुस्सा हो रही थी कि रोजा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे बेटे को धक्का दिया. See here, she's saying, did you just push my son? क्या तुमने अभी मेरे बच्चे को पुश किया? Oh, this is gonna be bad. अब रोजा डर गई कि मम्मी अब मुझे, इसकी मम्मी अब मुझे डांट रही है, तो this is gonna be bad. Moving on. But you know what made me even madder? पर क्या आपको पता है कि मुझे और भी ज्यादा गुस्सा किस चीज से आया? I was black and her son was white. She's talking about the skin color here. That Rosa कलर में ब्लैक थी एंड उसका वो जो लड़का था वो कलर में व्हाइट था. सो शी इमीडिएटली स्टार्टेड येलिंग. उसकी मम्मी इमीडिएटली उस लड़के की मम्मी येल करने लगी, बहुत जोर से चिल्लाने लगी रोजा पे. I'll have to put you in jail. उस लड़के की मम्मी रोजा को बोल रही है that I will put you in jail. You will never get out again. उस जेल से तुम्हें मैं कभी निकलने नहीं दूंगी. No question, it was scary. कोई सवाल ही नहीं है कि ये सिचुएशन स्कैरी नहीं था एंड रोजा डरी हुई नहीं थी. She was very scared. But my mother and grandfather taught me to respect myself and to expect respect from others. पर उसकी मम्मी और उसके ग्रैंडफादर ने उसको ये सिखाया था कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योरसेल्फ. खुद की रेस्पेक्ट पहले करो और फिर एक्सपेक्ट करो कि बाकी भी तुम्हारी इज्जत करेंगे. सो फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ. तो रोजा ने अपनी खुद की रिस्पेक्ट की और वो ये एक्सपेक्ट करती थी कि उसके आजू बाजू जितने भी लोग थे वो भी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ बैकिंग डाउन, तो झुकने के बजाय, दिस इज व्हाट रोजा डिड. नेक्स्ट पेज. आई स्टूड माय ग्राउंड. मैंने जो किया था मैं वहीं पे खड़ी थी और मैं उसका जवाब दे रही थी. एंड कामली बट फर्मली एक्सप्लेन. कामली मतलब बहुत शांत मन से, बट फर्मली मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होके, और जो उसने किया है बिना कंफ्यूज हुए उसने एक्सप्लेन किया. दिस इज व्हाट रोजा इज एक्सप्लेनिंग. लुक एट दिस पिक्चर. योर सन वाज द वन हु पुश्ड मी. आपके बेटे ने मुझे पुश किया. आई डिडंट बॉदर हिम एट ऑल. मैंने उसको बिल्कुल भी पहले परेशान नहीं किया था, उसने आके पहले मुझे धक्का दिया. दिस इज व्हाट Rosa says now. I wasn't just standing up to that mom. मैं सिर्फ उसकी मम्मी के ही सामने खड़ी नहीं हो रही थी, और even to the boy on the roller skates, और ना ही मैं उस लड़के के सामने खड़ी हो रही थी. I was standing up for myself. मैं अपने खुद के लिए खड़ी हो रही थी क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. After that, the boy and his mom never bothered me again. उसके बाद उस लड़के और उस मम्मी ने कभी भी परेशान नहीं किया जब रोजा ने अपना जवाब अच्छे से दिया. Still, it's hard to change things. फिर भी बहुत दिक्कत है ऐसी चीजें बदलना. Sometimes it can take a long time. कभी कभी ये चीजें बहुत ज्यादा टाइम ले सकती है. What do you think, friends, कि उस लड़की की मम्मी रोजा पे इतना गुस्सा क्यों थी? Just because उसने धक्का दिया था, और because she was black in color? Think about it, all right? आपको लगता है कि अगर रोजा व्हाइट होती, would that son's mother have reacted the same way? अगर रोजा का कलर, स्किन कलर would have been white, क्या उस लड़के की मम्मी रोजा पे इतना ही चिल्लाती और इतना ही डांटती क्या? Think about it. I'm not going to say anything. You have to think about this. All right, moving on.
And then back then, if you were black, you were treated unfairly just because the color of your skin. Just because आपका skin color black था, जिन जिन का भी वहां पे skin color black था, उनको बहुत unfairly treat किया जाता था. उनके साथ बहुत कोई भी चीज उनके साथ fair नहीं होती थी. You weren't allowed to live in the same neighborhood as a white person. आप उस पड़ोस में नहीं रह सकते थे जिस पड़ोस में व्हाइट लोग रहते थे. आपको अलग से रखा जाता था जस्ट बिकॉज यू हैड ब्लैक स्किन कलर. ईट इन द सेम रेस्टोरेंट. आप सेम रेस्टोरेंट में भी नहीं खा सकते थे जहाँ पे व्हाइट लोग खाना खा रहे हो. राइड द सेम एलिवेटर. एलिवेटर मीन्स लिफ्ट. सो यू सी अ लिफ्ट पिक्चर हियर. सो आप अगर कोई लिफ्ट में व्हाइट लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वो लिफ्ट यूज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज you're black, just because your skin color is black. Or use the same bathroom. It means कि जो bathroom white लोग use कर रहे black लोगों को इतनी भी अनुमति नहीं थी, इतना भी right नहीं था that they could use their same bathroom. उनको bathroom भी अलग जाना पड़ता था दूर कहीं पे. You couldn't even drink from the same water fountain. You see this water fountain here, yeah. This water fountain is inside the school और यहाँ पे सिर्फ white बच्चे पानी पी सकते हैं और black बच्चों को allowed नहीं है. black लोगों को allowed नहीं है कि वो same पानी use करे जो white people use कर रहे हैं. See, white water fountain में यहाँ पे white only लिखा हुआ है. And yeah, one was marked for whites, the other was for colored. So see, ये सिर्फ white लोगों के लिए पानी पीने की जगह है और ये colored लोगों के लिए जो कि white नहीं है. Do you think that's right? Do you think पानी पीने के लिए भी white और black होने की जरूरत है? पानी तो nature का है, right? Do we need permission to drink water from somewhere? क्या इंसान को, चाहे वो किसी भी स्किन कलर का हो, इतना राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी पानी पी सके? Tell me what do you think, okay? When I was little, जब मैं बहुत छोटी थी, I used to wonder if white water tasted different from colored water. क्योंकि रोजा ने कभी white water fountain से पानी पिया ही नहीं था, तो वो जब छोटी थी तो सोचती थी कि क्या white लोगों के लिए जो पानी मिलता है वो टेस्ट में डिफरेंट होता है जो पानी मैं पीती हूँ उससे. बट टेल मी फ्रेंड्स, पानी तो पानी होता है, राइट? क्या उसका कोई टेस्ट अलग होता है? I even wondered if colored water came in lots of colors. वो सोचती थी क्योंकि वो छोटी थी और उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, तो वो सोचती थी कि क्या कलर्ड मीन्स ब्लैक, जो लोग व्हाइट नहीं थे वो लोग, क्या उनका पानी कलर्ड होता था, क्या रंगीला कलर होता था उनके पानी का. सो शी यूज्ड टू थिंक दैट व्हाई इज इट सो डिफरेंट एंड हमें अलग से क्यों पानी दिया जाता है. बट इट डिडंट. द ओनली डिफरेंस वाज आई हैड टू वॉक आउटसाइड और इवन डाउन द ब्लॉक टू गेट माइन. उसने रियलाइज किया कि पानी का टेस्ट सेम ही था और कोई डिफरेंस नहीं था, बट स्टिल शी कुडंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस फाउंटेन, द वाइट वाला फाउंटेन, और उसको एक ब्लॉक मतलब एक पूरा मोहल्ला दूर जाके पानी पीना पड़ता था क्योंकि उसके दैट्स द प्लेस दैट वाज मेंट फॉर कलर्ड पीपल टू ड्रिंक वाटर. तो उसको बहुत दूर चल के जाके पानी पीना पड़ता था जस्ट बिकॉज वाइट लोग एक उसके स्कूल के वाटर फाउंटेन से पानी पीते थे. सो शी वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक. ऑफ कोर्स इट वाजंट जस्ट अबाउट वाटर फाउंटेन्स. वो कह रही है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वाटर फाउंटेन्स. सिर्फ वाटर फाउंटेन्स की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो कि अलाउड नहीं थी ब्लैक लोगों को. जैसे सेम एलिवेटर में नहीं जा सकते, सेम रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, सेम जगह से पानी नहीं पी सकते, सेम बाथरूम नहीं यूज कर सकते, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ब्लैक लोगों को अलाउड नहीं थी जस्ट बिकॉज ऑफ द color of the skin. And now I'm going to stop here और हम बाकी की स्टोरी आगे पढ़ेंगे. And I want you to think that what really is the problem? Why was it not allowed for black skin colored people to drink water from the same water fountain? Why do you think they had to travel so much? Why could they not use the washroom? और क्या ये सही है?
क्या क्या हमें लोगों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्किन कलर? व्हाट डू यू थिंक रोजा एंड अदर किड्स जस्ट लाइक हर हु वर ब्लैक और कलर्ड एंड हु वर नॉट व्हाइट फेल्ट एट दैट टाइम जब उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता था? थिंक अबाउट इट. ऑलराइट.